Dear parents and student, welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 6th Subject Geography, Chapter number 2, Lecture number 2. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है अपनी नोटबुक में लिखें. जब स्कूल ओपन हो तो सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से डिस्कस करें. पेज नंबर 12. Formation and types of mountain. Now what we discuss about formation, means how it created. माउंटेन्स कैसे बनते हैं एंड टाइप्स ऑफ माउंटेन. माउंटेन कितने टाइप्स के हैं. माउंटेन्स आर ऑफन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मॉडर्न फॉर्मेशन. सो माउंटेन्स इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन. सो in types of mountain, the first mountain is fold mountain. Mountains are most commonly formed by creasing or buckling of earth crust due to forces of compression. Creasing means wrinkle और buckling means to bend. मतलब अगर कोई प्रेशर पड़ता है या फिर नीचे से कोई प्लेट्स वगैरह डिस्क वगैरह अगर मूव करती है तो अंदर दबना, दैट इज कॉल्ड बकलिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन. किसी भी तरीके के दबाव से. तो कौन से माउंटेन बनते हैं. फोल्ड माउंटेन. दीज आर दस कॉल्ड फोल्ड माउंटेन. दिस प्रोसेस जनरली हैपन्स व्हेन टू प्लेट्स कोलाइड और मूव टूवर्ड्स ईच अदर. कोलाइड मीन्स भिड़ना. अगर कोई दो प्लेट्स हैं अर्थ क्रस्ट की, वो आपस में भिड़ती हैं, है ना. मतलब जो अर्थ की क्रस्ट में अगर कोई प्लेट्स आपस में भिड़ती है, उनमें कोई टकराव होता है, तो उस वजह से बनते हैं फोल्ड माउंटेन. और मूव टूवर्ड्स, या फिर मतलब एक तरह से हम इसे अर्थक्वेक भी कह सकते हैं. The collision causes the edges of the plates to be raised or uplifted to form mountain. अब उस collision से क्या होता है, दो चीज़ टकराती है तो एक ईज बन जाती है, एक प्लेट एक ईज बन जाती है. Most fold mountains thus occur at margin of plates. Notable example being the Andes and Rockies and Himalaya. These are the main example of fold mountain. Yes. What are the main example of fold mountains? कहाँ पर है fold mountain सबसे ज़्यादा. नंबर 1 Andes, सेकेंड Rockies and थर्ड Himalayas में. Buckling of the earth crust leads to the formation of fold mountains. Okay. Now the second points, types of fold mountains. Fold mountains is divided in two types. Number 1, fold mountain that were formed a few million years ago, मतलब बहुत पुराने हो गए. और second, old fold mountain on the other end were formed several hundred million years ago. मतलब फोल्ड माउंटेन भी दो टाइप के हो गए, एक तो जो नए बने और एक है जो बहुत पुराने हैं. क्लियर. टू टाइप्स. फर्स्टली वी डिस्कस नंबर 1. Fold mountain that were formed a few million years ago are known as young fold mountains because it created a millions ago. Means millions ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होता है, तो उन्हें हम young fold mountain कहेंगे. They generally consist of parallel ranges with steep slopes. माउंटेन की सबसे बेसिक सी बात है, जो स्लोप है वो स्टिप होती है. एंड टॉल पीक्स भी होंगी, विच रिमेन स्नो कवर्ड ड्यू टू द हाई एलिवेशन. प्लस जो इनकी हाइट होती है वहाँ पर यूजुअली हमेशा आपको आइस देखने को मिलेगी, बिकॉज वो इतने टॉप पर होता है.
The Alps and Himalayas are the example of young fold mountain. So अल्प और हिमालय जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है. क्लियर? Old fold mountain, on the other hand, were formed several hundred million years ago. They have several hundred million years ago. They have gentle slopes and low rounded peaks. Peaks जो होती है वो थोड़ी rounded हो गई. स्लोप ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा स्लोप रहता है. Since they have been worn down by agents of denudation, इनको उनकी हाइट धीरे धीरे कम होती जाती है. Such as rivers and glaciers over a long period of time. The Aravallis and Urals are example of old four mountains. So Aravallis जो है जो हमारे यहाँ बनी हुई है, राजस्थान में Aravallis, you know that. कुंभलगढ़ और उधर की जो रेंजेस है ना उसे उन्हें अरावली रेंजेस कहते हैं. तो वो बहुत पुराने हैं हिमालय से भी. ठीक है, और वो इतनी पॉइंटेड नहीं होती है, वो थोड़ी सी ऊपर से राउंडेड शेप की मिलेगी आपको, और स्लोप्स इतना ज़्यादा नहीं होता. यू कैन ईजीली आप उनके ऊपर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं. सो कौन से माउंटेन हुए ये? ओल्ड फोल्ड माउंटेन. सेकेंड, Block mountains and Rift Valley. What is Block mountain and what is Rift Valley? Here you can see in this chapter formation of Block mountain and Rift Valley due to faulting. Basically क्या हो रहा है इस पिक्चर में? अर्थ के क्रस्ट में कोई चेंजेस आ रहे हैं, कुछ फ्रिक्शन हुआ, कुछ ठीक है टकराव हुआ, या फिर ज़मीन थोड़ी दब गई. उससे क्या हुआ कि एक ब्लॉक बना, है ना. तो जो ब्लॉक बना उसे तो हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, और जो एरिया ज़मीन के अंदर दब गया है उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली. मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट मे समटाइम्स कॉज क्रैक्स और फोल्ड टू अकर रिजल्टिंग इन द क्रस्ट ब्रेकिंग इनटू ब्लॉक्स. बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ अर्थ समटाइम्स द क्रस्ट इज ब्रेकिंग इनटू ब्लॉक्स, है ना. अर्थ की जो मूवमेंट है उसकी वजह से क्या होता है, जो क्रस्ट होती है, अर्थ क्रस्ट जो है वो ब्लॉक्स में टूट जाती है, कन्वर्ट हो जाती है. दीज लार्ज ब्लॉक्स ऑफ क्रस्ट आर ऑल्सो नोन एज क्रस्टेड ब्लॉक्स. इन बड़े बड़े ब्लॉक्स को क्या कहते हैं हम? क्रस्टेड ब्लॉक्स. क्रैक्स और फॉल्ट्स मोस्ट कॉमनली अकर ड्यू टू ट्रांजिशनल फोर्स that pull crystal blocks away from the each other. अब क्या होता है? क्रैक्स और फोर्स, ट्रांजिशनल फोर्स मीन्स जो अर्थ के अंदर जो फोर्स रहता है ना उसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट होती है. एज अ रिजल्ट द क्रिस्टल ब्लॉक इन बिटवीन टू फॉल्ट्स लाइन सबसाइड्स अलॉन्ग द फॉल्ट प्लेन, leaving two raised blocks and either side known as block mountain. The subsided block is between forms a rift valley. Thus rift valley, unlike other rivers valley, are formed due to the movement within the earth. Okay, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था सेम बात हो रही है कि जो एरिया अर्थ के अंदर दब जाता है कंप्रेशन की वजह से, फोर्स की वजह से, तो उस एरिया को तो हम कहते हैं रिफ्ट वैली. तभी आपने देखा होगा ना कि रिवर जो होती है माउंटेन के बीच में से फ्लो करती है, तो रिवर को एरिया मिलता है फ्लो करने के लिए, और जो साइड का जो एरिया होता है उन्हें हम क्या कहेंगे? ब्लॉक माउंटेन. और ब्लॉक माउंटेन बनने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है? अर्थ की मूवमेंट. Block mountain usually have extremely steep sides and flattened summit. Block mountain जो होते हैं वो मतलब बहुत क्या बोलते हैं हम, टॉप से तो थोड़े फ्लैट रहते हैं, बट साइड्स उनकी बहुत ज़्यादा स्लोप होती है. The Vindhya and Satpura of India, the Syria of Nevada of the North America, the Harz mountain of Germany are few of the several block mountains of the world. Here we can see some examples of block mountain. Vindhya and Satpura in India,
Sierra Nevada of North America and the Harz Mountain of Germany. ये सारे ब्लॉक माउंटेन्स हैं. Rift Valley are bounded by steep-sided slope of block mountains and have a flat floor. ठीक है, जो रिफ्ट वैली जो है वहाँ पर क्या आपको जो है ना फ्लोर होता है वो फ्लैट मिलेगा. द नर्मदा रिवर ऑफ इंडिया फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली फॉर्म्ड between the two block mountains, namely Vidya in the north and Satpura in south. सो जो नर्मदा रिवर है वो कहाँ पे फ्लो कर रही है? रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही है. ठीक है, दो माउंटेन्स के बीच में से निकल रही है नर्मदा रिवर. बेसिकली नर्मदा रिवर कहाँ पर है? गुजरात में है. और कौन से दो माउंटेन है जिनके बीच से निकल रही है? विंध्या एंड सतपुरा. The Rhine of Europe flows through a rift valley bordered on either side by the Black Forest Mountain of Germany and the Vosges Mountain of France. The Eastern African Rift Valley system extended over 6,000 kilometers is one of the longest in the world. वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली कहाँ पर है? अफ्रीका में. और कितनी एक्सटेंड कितनी है ये? 6,000 किलोमीटर्स इसका एक्सटेंशन है. यूरोप की भी है वो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन ऑफ जर्मनी. ये सब इतने बड़े नहीं है. सबसे बड़ी कहाँ पर है? अफ्रीका में रिफ्ट वैली. Volcanic mountains. Number 3. Volcanic mountains are made up of molten material known as magma, the material is known as magma, along with ash and small rocks particles called cinders. मैग्मा के अंदर आपको क्या मिलेंगे? स्मॉल रॉक पार्टिकल्स मिलेंगे और एशेज मिलेंगे. उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिंडर्स. These material erupt from the earth interior through an opening known as vent. अर्थ में ही इनका एक ओपनिंग पॉइंट रहता है और जहाँ से बाहर आते हैं उस एरिया को क्या बोलते हैं? वेंट. On reaching the surface, the magma cools down and solidifies. With several successive eruptions, the lava piles up gradually, thereby building up a कॉनिकल वॉल्केनिक माउंटेन. देखो, सबसे पहले जो मटेरियल लिक्विड बाहर निकलता है उस लिक्विड को मैग्मा कहते हैं. ठीक है, उसके साथ साथ क्या क्या आता है? एशेज आती हैं और स्मॉल रॉक्स आती हैं, उसे हम कहते हैं सिंडर्स. और जो ओपनिंग माउथ होता है उसको हम कहते हैं वेंट. अब जैसे जैसे वो बाहर आ रहा है तो लावे का ढेर लगता जाता है और लावा का ढेर लगने के बाद उससे एक रॉक बन जाती है. सो एक कॉनिकल वॉल्केनिक माउंटेन बन जाता है उसके बाद. इन दिस पिक्चर यू कैन सी स्मोक, एशेज एंड गैस क्लाउड. ये सब बाहर निकल रहा है, लावा निकल रहा है. There are 3 types of volcanoes. How many types of volcano? 3 types. Some volcano mountains such as Mount Etna in Sicily are active volcano. They erupt frequently. कहाँ का माउंटेन वॉल्केनो सबसे ज़्यादा एक्टिव है? माउंट इटना, सिसिली का. ये एक्टिव वॉल्केनो है. ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगी वॉल्केनो की टाइप? एक्टिव वॉल्केनो. माउंट फुजियामा इन जापान लेटेस्ट इरप्टेड इन द अर्ली 18th century में इरप्ट हुआ था ये. Other volcanoes such as the two cones of the Mount Kilimanjaro, Tanzania, Africa have not erupted for several centuries and are not considered extinct volcano. Second कौन सा है volcano? Extinct volcano. ठीक है. And the third
Dormant volcanoes have been known to erupt in historical times and show sign of possible eruption in the future. डॉर्मेंट वॉल्केनोज वो वॉल्केनोज होते हैं जो पहले सेंचुरी कई सालों पहले वो इरप्ट हुए थे बट अब वो शो करते हैं कि वो फिर से इरप्ट हो सकते हैं फ्यूचर में. तो 3 टाइप्स के वॉल्केनो हो गए. नंबर 1 हो गया एक्टिव, सेकेंड हो गया एक्सटिंक्ट एंड थर्ड इज डॉर्मेंट वॉल्केनो. Okay, your today's homework, class 6th, subject geography, chapter number 2, lecture number 2. Homework. Word meaning: creasing, wrinkle. Buckling, to bend under pressure means pressure में आने से कोई भी चीज़ bend हो जाती है. यहाँ पर हम surface की बात कर रहे हैं. कंप्रेशन, दबाव. कोलाइड, भिड़ना. डेन्यूडेशन, डिक्रीज. समिट, शिखर. टेंशनल फोर्स, खिंचाव. खिंचाव से जो फोर्स बनता है ना उसे हम टेंशनल फोर्स कहते हैं. इरप्ट, फूटना. पाइल्स अप, ढेर लगाना. एक्सटिंक्ट, विलुप्त होना. यस, complete your work and send your daily homework before 9 o'clock every day in good handwriting on this WhatsApp number 7568077458. डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क रफ नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर सेंड करना है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.